Good morning, students. How are you? I hope you are so good. Today I am giving to you moral that you have note to first page of your copy. Okay? I am that will give you moral. You will note daily to daily. Okay? In your copy. Today my moral is the word faith and belief. Two words can never go together. What is the means of this? Faith and belief. Faith and belief can never go together. I want to say you that if you believe in that you can do it, then always then necessary you will do it. Understand ना? अगर आपको भरोसा होगा कि हम इस काम को कर सकते हैं तो आप उस चीज़ को ज़रूर कर लोगे, लेकिन आप पहले से डाउट में रहोगे कि पता नहीं हम कर पाए नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाओगे. हाँ, इसी तरीके से बिल्कुल आपका सिमिलरली दिस आर सेम फॉर योर मैथ्स क्वेश्चन. इफ़ यू विल believe that you will solve it, then necessarily you will solve it. Okay, so believe on this and try to solve. As you know that it is the book of R.D. Sharma, published mathematics for your 9th class, and from this book I am taking exercise 1.1. Which exercise? Exercise 1.1. This include the natural number, whole number, integers, rational number, irrational number. That is included in this exercise. But students, the rational number, whole number, integers and all you are studied in the previous class. I think you know it very well. But I am revised to it. What is this? As you know, natural number. What? Natural number. Natural number. The word natural number start from the N, so the symbol of natural number is capital N. And all the countings start from the 1, 2, dash, dash, dash goes to the infinite is known as the natural number. Okay. Next is whole number. Next is whole number, and the word start whole number from the W, so the symbol of W, the symbol of whole number is W, and the W is union of 0 and natural number. Okay, what is the meaning of union? Union start from the U, so the symbol of union is U. Okay, symbol of union is U only. And union means, what is the means of union? Union means together. As you studied in previous class, you know it well, but I revise it, that union start from the U and union means together. Whole number, after the whole a point come, that name is integers, and the symbol of integers is Z. It is denoted by it is two types. It is denoted by capital Z, and integers have two types. What is the type of integer? One is negative integer and one is positive integer. Okay, one is negative integer and one is positive integer. What is this? I am making this a number line. When you will go 0 to right, this is your right side and this is your left side. When you will go 0 to right, the number will be add. Okay, when you will go 0 to right, all number will be add, and when you will go 0 to left, the number will be subtract. Okay, when you will go 0 to right, the number will add. समझ में आया बच्चों? जब आप 0 से राइट को जाओगे तो नंबर्स क्या होंगे? प्लस होंगे. देखा होगा आपने यहाँ पे 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 3. ये आपका इंक्रीज होता चला जाता है. 1, 2, 3. कैसे आ रहा है 1, 2, 3? क्योंकि 1 में आपने क्या किया? +1. तो क्या आ गया? 2. नाउ 2 + 1 gives out 3. Here what I said?
When you will go 0 to left side, the number will be decrease. Then here will come 0 minus 1, minus 1, minus 1 minus 1, minus 2, 0 minus 1, minus 1, minus 1 minus 1, minus 2, minus 2 minus 1, minus 3. Understand? When you will go 0 to right side, the number will be increased. And when will you go 0 to left side, the number will be decreased. How is decreased? Because the 0 minus 1 is greater, minus 2 is less. So this is the decreasing order. Okay, this is your integer. ठीक, इंटीजर समझ में आया? एक बार फिर से देखो, इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जब आप होल नंबर्स को ले लेते हैं किसके साथ? नेगेटिव नेचुरल नंबर के साथ. ठीक है, तो वही क्या कहलाता है आपका? इंटीजर. होल भी होता है, उसमें होल भी होगा और साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होंगे. नेचुरल नंबर किसके साथ? नेगेटिव सिंबल के साथ. तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर. ठीक, नेक्स्ट है आपका रैशनल. क्या है आपका नेक्स्ट? रैशनल. रैशनल में पहला वर्ड क्या आया? रेशियो. ठीक है, रैशनल किससे किससे मिलकर बना हुआ है? रैशनल इज मेड अप ऑफ द वर्ड रेशियो. रैशनल किससे मिलकर बना है? रैशनल का फर्स्ट वर्ड क्या है? रेशियो. रेशियो मीन्स आपको पता है रेशियो का सिंबल ये होता है और रेशियो को हम लोग अपॉन से भी शो कर सकते हैं ना. तो ये जो बना हुआ है रैशनल से मिलकर बना हुआ है. और इसका नेक्स्ट इसमें आता है और इससे मिलकर बना हुआ है क्वाइटेंट क्यू से. ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है? क्वाइटेंट क्यू से. तो इसीलिए रैशनल को डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से. ठीक है, इसीलिए रैशनल को डिनोट किससे करते हैं? क्यू से. और रैशनल का रिवर्स होता है क्या? रैशनल का रिवर्स होता है इरेशनल. तो इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश से. व्हाट इज रैशनल नंबर? व्हाट इज रैशनल नंबर? स्टूडेंट लिसन टू माय वर्ड्स दैट आई विल आस्क टू योर क्वेश्चन. यू हैव टू रिप्लाई इन माय कमेंट बॉक्स. ओके, मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगी आपको उन सारे का मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसको आंसर जो है आपको रिप्लाई में कमेंट बॉक्स में करना है. ठीक है, कर दीजिएगा विद माय कोड. Rational number. Rational number, it is a symbol of, the symbol of rational number is Q. And what is the definition of rational number? Any number that can be expressed as P upon Q. ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर्स जिसको हम P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर. कंडीशन क्या है यहाँ पे? कि Q does not equal to 0. Suppose that if anyone asks you a question that 4 upon 14 is a rational number, you will say yes. What you will say? Yes. But if anyone asks that to you that 4 upon 0, what 4 upon 0 is 4 upon 0 a rational number, you will say no, because the denominator of this is 0. So it will not a समझ में आया आपको? रैशनल नंबर क्या होता है? स्टॉप हो गया. रैशनल नंबर क्या होता है? कि जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है. ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो इरेशनल नंबर रहेगा, रैशनल नंबर नहीं रहेगा. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रूट्स में. कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर. ठीक है, जिनका डेसिमल फिक्स नहीं होता, वो लगातार इंक्रीज करते चले जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा √2 की वैल्यू. √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4142 है ना. ये नियर अबाउट वैल्यू इतनी ही नहीं होती है, अभी ये और इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इसकी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इरेशनल. √3 का भी देखा है आपने 1.728 डैश डैश डैश, ये भी बढ़ता ही रहता है ना. तो ये भी हमारा फिक्स नहीं है. बट जब आप √4 की बात करते हो तो √4 इक्वल्स टू क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? √4 इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो √4 की वैल्यू है, √4 हैज़ अ वैल्यू दैट इज 2. So √4 is not a rational number. Which type of √4 is number? √4 is, you can set that √4 is 2 ना. √4 equals to 2, so you can set that √4 is whole number, either is natural number. Okay, then this is the topic, students, that are in your chapter. In this exercise 1.1, have a question that you will solve. This type I am tell to you. In this type of question you will solve that, you will find that how many rational number between 1 and 2. You will find that
रैशनल नंबर, व्हाट यू विल फाइंड, रैशनल नंबर कॉन्सेप्ट, ये आपका बेटा कॉन्सेप्ट है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस को आप अपने आप कर सकते हैं ना। मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आप क्वेश्चंस करिएगा। इसमें क्या है, रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन इंटीजर्स या जो भी है, ठीक है। देन कैसे आप फाइंड करेंगे, सपोज दैट इफ यू हैव अ क्वेश्चन 1 and 2, ठीक है, P and Q, सपोज दैट आपके पास कोई P and Q है। P and Q मतलब कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर। तो बेटा इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको फाइंड करने के लिए आप करोगे P इज ग्रेटर देन, P इज लेस देन P प्लस Q अपॉन 2 इज लेस देन Q। व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, अगर आपको किसी भी नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है बेटा, क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप उसी दोनों को, ये देखो P और Q हमारे पास दो नंबर था ना, मैंने P और Q को क्या कर दिया, सम, P और Q का सम करके अपॉन क्या कर दिया 2। अंडरस्टैंड, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका है फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड है ये, फर्स्ट मेथड। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, वो कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड। मैं सेकेंड मेथड बताती हूँ, पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज दैट इफ यू हैव अ क्वेश्चन 3 and 4, आपके पास एक क्वेश्चन है 3 and 4, तो 3 and 4 के बीच आपको फाइंड करना है 3 and 4 के बीच कौन सा रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एक इंटीजर आपको फाइंड करना है, अगर 3 and 4 के बीच एक इंटीजर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, क्या लिखा है यहाँ पे, P प्लस Q अपॉन 2, मतलब जो आपको नंबर दिए रहेंगे उनका आपको क्या करना है, सम करना और अपॉन 2 करना है ना। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है 3 and 4, तो यू विल सम द 3 and 4 एंड डू द अपॉन, ठीक है, इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, ठीक। 7 अपॉन 2 आपको पता है इसका मीन्स क्या होता है, 3.5। बोलो क्या 3 और 4 के बीच में 3.5 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो। जब आप इंटीजर्स बनाते हो 0 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 एंड यहाँ पे 4, तो इसके बीच में बहुत सारे लाइन्स होंगे 3 और 4 के बीच में, आपको चेक करना। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 और 3.5 आया ना, आया ना। 3 एंड 4 के बीच में क्या आया 3.5, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कैसे कोई नंबर इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट मेथड। क्या है बेटा फर्स्ट मेथड, सपोज दैट आपको 3 या 4 फाइंड करना है, इसी क्वेश्चन में आपको 3 या 4 फाइंड करना था, 3 and 4, ठीक है। तो आपने इसका किया था, तो आपके पास क्या आया था 7 अपॉन 2, ये आपका फर्स्ट आंसर आया, ठीक है। अब मैंने कहा इसके बीच में हमें 2 नंबर चाहिए, ठीक। तो आप क्या करोगे, जो आंसर आएगा, आंसर आया क्या 7 अपॉन 2, ठीक है, आंसर क्या आया 7 अपॉन 2, ठीक। अगर केवल एक ही फाइंड करना रहेगा तब तो 7 अपॉन 2 ही आंसर हो जाएगा, लेकिन इनके बीच 2 इंटीजर्स फाइंड करना है, 2 नंबर फाइंड करना है, देन हाउ यू विल डू, जो लास्ट में आएगा, लास्ट में क्या आया 7 अपॉन 2, जो आंसर आएगा उस आंसर को लास्ट वाले के साथ, हमारा क्वेश्चन क्या है 4, तो 7 अपॉन 2 प्लस 4 इसको करके अपॉन 2 करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 and 7 15, यानी कि 15 अपॉन 2 अपॉन 2। आपको पता है ये अपॉन 2 कैसे कन्वर्ट होगा, ये डिवाइड में है, इनटू में बन जाएगा, इनटू में बनेगा तो 15 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 15 अपॉन 4, ठीक है, आ जाएगा, ठीक। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, ठीक है, बचेगा 3, 4 7 ज़ा 28, 3.75। 3.5 के बाद 3 और 4 के बीच में 3.75 आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा, ठीक है। तो ये था, मतलब आप जितने भी बेटा किसी भी 2 इंटीजर्स के बीच में हम बहुत सारे इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट, किसी भी P and Q के बीच में बेटा आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट मेथड। मैं आपको सेकेंड मेथड बताती हूँ। सेकेंड मेथड से आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। बेटा ध्यान से समझिएगा सेकेंड मेथड, और कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो क्या है सेकेंड मेथड, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 1 and 2, क्या क्वेश्चन है 1 and 2, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा कि मुझे इनके बीच में 1 and 2 के बीच में कितने इंसर्ट करना है, 5
रैशनल नंबर, इनके बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर। किसके किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। देन हाउ यू विल फाइंड? बाय द सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है कि इन दोनों का सम करो अपॉन 2, फिर लास्ट में जो आता है उसको दोनों को सम करो अपॉन 2, जो आएगा उसको दोनों को सम अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट मेथड यही है। लेकिन सेकेंड मेथड से आप कैसे करेंगे? सेकेंड मेथड करने का तरीका बेटा ये है कि कितना हमसे क्वेश्चन ने रिक्वायर्ड किया है। कितना रिक्वायर्ड किया है? 5। ठीक है, तो 5 में आप क्या करोगे? +1 मीन्स जो क्वेश्चन बोलेगा, जो क्वेश्चन रहेगा, जितना क्वेश्चन ने रिक्वायर्ड किया होगा, रिक्वायर्ड क्वेश्चन +1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन +1 जो बोलेगा। जैसे इसमें 5 बोला है तो हमने 5 + 1 कर दिया। 4 बोलता, कहता है इनके बीच में 4 रैशनल नंबर बताओ, तो क्या करते? 4 + 1। 3 बोलता तो क्या करते? 3 + 1। जो क्वेश्चन कहेगा उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना? 1 ऐड करने के बाद बेटा ये हमारा बन क्या जाएगा? बन क्या जाएगा? ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। हमें इस फ्रैक्शन का क्या बना, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है। ये हमारा है डिनोमिनेटर, तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर इसका हम कुछ इस तरीके से सोच के रखेंगे कि जो हमारा पहला वाला वैल्यू है वही आए। पहली वाली वैल्यू है क्या? 1। पहली वाली वैल्यू क्या है? 1 और डिनोमिनेटर क्या है? 6। फ्रैक्शन इक्वल टू आप क्या जानते हो बेटा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इक्वल टू आप क्या जानते हो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इस क्वेश्चन के लिए आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? 5 + 1 यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो गया? 6। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? 1। क्वेश्चन ने स्टार्ट किसका? पहला जो आपका रैशनल नंबर है वो क्या है? 1। 1 और 2 के बीच फाइंड करना है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या ऐसी वैल्यू हो कि जिसको डिवाइड करने पर 1 आ जाए? डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 6 है। क्या है डिनोमिनेटर? 6। सोचो बेटा, जल्दी से सोच के रिप्लाई करो कि क्या यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि यहाँ पर रखने से फ्रैक्शन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें मिल जाए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है 1, 6 है हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या है? 6। यानी कि 6 को किससे डिवाइड किया जाए? सिंपली क्वेश्चन है बेटा, 6 को किससे डिवाइड किया जाए कि 1 मिल जाए? 6 को किससे डिवाइड करें कि 1 मिल जाए? बताओ बेटा, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा ना, क्योंकि 6 और 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ आया? यानी पहला वाला क्वेश्चन क्या था? पहला इंटीजर क्या था? 1 और नेक्स्ट क्या है? 2। डिनोमिनेटर हर बार बेटा, डिनोमिनेटर हर क्वेश्चन के लिए यही रहेगा क्या? 5 + 1 यानी कि 6। ठीक है, पहला तो हमारा मिल गया 6/6। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा क्या होगा हमारा फ्रैक्शन? दूसरा होगा, ये है F1 यानी फ्रैक्शन 1। दूसरा फ्रैक्शन होगा हमारा F2। दूसरा हमसे क्वेश्चन ने रिक्वायर क्या किया है? 2। ठीक, तो यहाँ पे है 6। ठीक है, अब बताओ 6 को किससे डिवाइड किया जाए कि 2 मिल जाए? कोई बता सकता है? 6 को किससे डिवाइड किया जाए कि 2 मिल जाए? यहाँ पर क्या डिवाइडेंड, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जब हम डिवीजर 6 से डिवाइड करें तो हमें क्वोटिएंट 2 मिले? बोलो बेटा, क्या हम क्वोटिएंट, किस क्वोटिएंट को हम 6 डिवीजर से डिवाइड करें कि हमें क्वोटिएंट 2 ऑब्टेन हो? कोई बता सकता है? बोलो, किस क्वोटिएंट को डिवाइड, किस डिवाइडेंड को डिवाइड किया जाए? क्या होगा? अगर हमें 2 पाना है, डिवीजर 6 है और हमें क्वोटिएंट 2 चाहिए तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से करेंगे। ठीक है, देखो यहीं पे आपको आपका सारा आंसर क्या हो गया? फाइंड हो गया। कैसे? आपको कितने इंटीजर चाहिए थे बेटा? कितने चाहिए थे? बोलो, कितने चाहिए थे? 5 चाहिए थे ना। आपका फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गया? 6/6। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या आ गया? 6/6 और नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गया? 12/6। मीन्स आपका 6/6 और 12/6। बेटा यहाँ पे क्या देख रहे हो? डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है। हम देखते हैं जब हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जब ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको 6 से बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये आपका है, सपोज दैट इसके बीच में हमने डैश नंबर लिखे हैं। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, जब आप इस सबको 6 से डिवाइड कर दोगे, बाई 6 कर दोगे, बाई 6 करो, जब आपने इन सबको बाई 6 किया तो व्हाट यू विल सी दैट योर फर्स्ट फ्रैक्शन इज 6/6 एंड योर नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 12/6। ठीक है, आपको कितने इंसर्ट करने थे? 5। देखो ये 5 है या नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5। ये पूरा
पूरा 5 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो मैं एक क्वेश्चन और लेकर समझाती हूँ, एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को बेटा समझ लो। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि P इज लेस देन P प्लस Q अपॉन 2 इज लेस देन Q। होता है ना, जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो बीच वाले से क्या होगा, बीच वाला इससे P से बड़ा होगा और Q से छोटा होगा। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये आपका सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में बच्चों आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर। क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मिलेगा कैसे, जितना क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट क्या होगा उतना उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। उसी के क्वेश्चन में कितना प्लस कर देंगे, 1। कितना प्लस करेंगे, 1। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6/6। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन आपका क्या है, 12/6। क्या है, 12/6। तो ठीक, नहीं सॉरी, फर्स्ट आपको फर्स्ट चाहिए, 1 चाहिए था। क्या चाहिए था, 1। तो 1 फाइंड आउट करने के लिए आपका फ्रैक्शन यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर क्या था, 6 था, इसलिए आपने इसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोला हमें 6 को किससे डिवाइड कर दे कि 1 मिल जाए। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 1। 6 को किससे डिवाइड कर दे कि 12 मिल जाए। 6 किससे डिवाइड करें, 2 मिल जाए। तो जब 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तभी क्या मिलेगा बेटा, 2। 6 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। अब इसके बीच में फ्रैक्शन तो आपका वही सेम है, इसके बीच में जितने भी नंबर लाइन पे नंबर आएंगे वो सारा आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये आपको नंबर लाइन शो नहीं करना है, बस केवल ये आंसर राइट करना है। ठीक है, समझ आया। नहीं आता है तो मैं आपको एक और बता देती हूँ, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ, उसे देखो आप। सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन 3 and 4। क्या है आपके पास क्वेश्चन 3 and 4। क्वेश्चन ने बोला कि हमें इनके बीच 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करिए। मैं करती हूँ सेकेंड मेथड से। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, कितना मैंने बोला, जितना क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या होगा, डिनोमिनेटर वहीं से बनाएंगे, यानी 6 + 1। डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया बेटा, 7। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो गया, 7। फ्रैक्शन 1 क्या होगा आपका, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू, यहाँ पे है आपका 7। फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या रिक्वायर्ड किया है, 3। क्या रिक्वायर्ड किया है, 3। 7 डिवीजर को किस डिवाइडेंड के साथ डिवाइड किया जाए कि आपको क्वॉटिएंट 3 मिल जाए। ठीक है, 7 को किससे डिवाइड किया जाए, 7 डिवीजर को किस डिवाइडेंड से डिवाइड किया जाए कि क्वॉटिएंट 3 ऑक्टेन हो। तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा, 21 होगा ना, क्योंकि 7 3 = 21। यहाँ पे क्वॉटिएंट क्या आएगा, 3। फर्स्ट क्या हो गया, 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन यानी F2 आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4। ठीक है, तो बताओ 7 को किस डिवाइडेंड से डिवाइड किया जाए कि आपको क्वॉटिएंट 4 मिल जाए। किससे डिवाइड करेंगे, 28 से, तभी क्या आएगा, 7 4 = 28। अब देखो यहाँ पे ये आपका फ्रैक्शन ऑब्टेन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑब्टेन हो गया। ऑब्टेन हुआ ना, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7। जब आप इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, शो नहीं करना है आपको नंबर लाइन में, तो आपको समझने के लिए बता रही हूँ। स्टार्टिंग करते हैं हम, यहाँ पे सपोज दैट 0 है, डैश डैश बहुत सारे नंबर है। मैं आपको स्टार्टिंग करती हूँ 21/7। सारे को आपने समझो, आपने सबको यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड/7। अब यहाँ पे 21 है, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 22। फिर क्या आएगा, 23। फिर 24। फिर 25। फिर 26। फिर 27 और फिर लास्ट में आपका 28/7। ठीक है, आ जाएगा ना। तो ये आपका है सेकेंड और ये है आपका फर्स्ट। इनके बीच में क्या क्या आया बेटा, यही तो आया, यही आया ना इनके बीच में। इसी के बारे में पूछा था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही है आज आपका एक्सरसाइज। आपको बस केवल दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में आपको मैनी नंबर्स क्या करना है, इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो देखो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताओ। जैसे आपसे लेवल 1 का एक्सरसाइज 1.1 में लेवल 1 से क्वेश्चन पूछा है, इज 0 अ रैशनल नंबर। बेटा आप बताओ, क्या 0 रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द P/Q। क्या 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि हम 0/1 भी लिख सकते हैं।
0/2 भी लिख सकते हैं, इक्वल नहीं है, कॉमा कर सकते हैं, ठीक है। तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। मैंने क्या कहा था, आई सेड दैट डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, द डिनोमिनेटर d is does not equal to 0. Are you see that d is 0? No, no, d is not 0. So the 0 is rational number, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, बेटा आप ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इनके बीच आपको नंबर्स इंसर्ट कराना है, इसको भी आप करिएगा। ये जो फ्रैक्शन वाला है बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 4 जो फ्रैक्शन वाला है, इसको आप इसी मेथड से करना, p + q/2, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसी मेथड से करिएगा, p + q/2। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, इन सब का आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 करके चाहती हूँ, ठीक है। आप मुझे इन सब का रिप्लाई करोगे, अगर आपको नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में इन सब का बता दूंगी आंसर, ठीक है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको 3 बता दे रही हूँ, 3 आप अपने मन से सोच के रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो बेटा, जब हम नेचुरल नंबर बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, होल नंबर। क्या लिखते हैं, होल नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल तो होते हैं, मगर सारे होल नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है। सारे होल नेचुरल नहीं होते हैं, इसीलिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आपको बताना है क्या -2 या 2 रैशनल नंबर है, ये इंटीजर है ना 2 टाइप के, तो ऑफकोर्स ये इंटीजर हो सकता है, क्योंकि अपॉन 1 हम कर सकते हैं, किसी के भी अपॉन में हम 1 कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका लास्ट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, 4/5, ठीक है, 4/5 या 16/5 या 1/3, इसको ले लो, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3.333, लगातार इंक्रीज होता रहेगा, है ना बेटा। तो इसीलिए सारे रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकते हैं, इंटीजर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो 3 क्वेश्चन है इसको आप थिंक करके रिप्लाई करिएगा, एंड आई वांट टू से यू आर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नंबर 4 5 6 you have to reply in my comment box, and if you any doubts then you can query in my personal WhatsApp, okay. Thank you. My code is Amperes Maths 20.